Micromeritics means what? You can see it is made up of two words, micro and meritics. So micro means what? Micro means size in a micron. Micro means size in a micron, and meritics means measurement. Meritics means measurement. So measurement of size in a micron. तो size किसका measure करना है आपको? Particles. Okay. So particles और powder, जो भी आप particles use करते हो या फिर powder use करते हो उसकी क्या है? Particles. So micromeritics means what? Measurement of size of particle in a micron. Okay, that is micromeritics. Or you can say study of particles and their characteristics which are in a very small size. Okay, so study of particle characteristic in a micron size, that is known as a micromeritics. So as a being a pharmacist and being a industrial pharmacist, you need to handle various kind of powders. For example, you are working in the tablet section, then you have to use various kind of powders like bulk drug along with the additives, excipient. You have to mix, you have to perform various kind of operations with that powder. Mixing is there, granulation is there, okay, compaction is there, then dissolution, each and everything. There are a lot of operations those are involved in the industry regarding this powder. Okay, so micromeritics is the study of particles or characterization of particle in a micron size. You need to characterize the particle. See, for mixing also you need, mixing means what? Mixing means closeness of two dissimilar particles. So if these two particles they are having wide variation in the shape, अगर दो मिक्सिंग करना है आपको, मान लीजिए कि पैरासिटामॉल का पाउडर है आपके पास और टाल्क का पाउडर, तो पैरासिटामॉल का पाउडर का साइज है आपका कि मान लीजिए कि पैरासिटामॉल के जो पार्टिकल्स है वो 25 माइक्रोन साइज की, और आपका टाल्क का जो पाउडर है वो है आपका 5 माइक्रोन साइज का. सो देयर विल बी नॉट बी इफेक्टिव मिक्सिंग. सो फॉर मिक्सिंग यू नीड अ यूनिफॉर्म साइज. ठीक है, दो पार्टिकल का साइज अगर सेम है तो उसमें प्रॉपर मिक्सिंग होगा. अगर दो पार्टिकल का साइज अलग अलग है तो उसमें प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगा और उसमें क्या होगा? सेग्रीगेशन. सो इफ टू डिसिमिलर और two powders having different particle size, if you try to mix them, they will not mix readily, and if they will also get separated or segregated. So for such kind of operation you need to know particle size, you need to measure the particle size, you need to understand what is the particle size distribution, etc, etc. So characterization of particles involves the measurement of particle size, measurement of particle size distribution, measurement of particle size distribution of powder also, then measurement of size of that particle, measurement of that shape of particle, volume of that particle, density, surface area, porosity, okay, and the flow properties. So these are the properties associated with the powder. What are the different properties of powder? That is nothing but the size. You should know the size of that particles in powder is nothing but a collection of particles. Okay, आपके पास मान लीजिए 10 मिलीग्राम पाउडर है तो पाउडर में सिर्फ एक ही पार्टिकल नहीं होगा, उसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे. सो पाउडर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स. यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइज ऑफ दैट पार्टिकल, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द शेप. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ शेप. some particles may be either spherical, some particles may be either trigonal, hexagonal, etc, etc. So if there is a wide variation in the shape, अगर दो पाउडर है आपके पास, दो टाइप के पाउडर है और दोनों टाइप के पाउडर में जो पार्टिकल जो है उसमें उसका शेप अलग अलग है, किसी का स्फेरिकल है, किसी का ट्राइगोनल है, किसी का हेक्सागोनल है, तो उसमें मिक्सिंग में प्रॉब्लम आ सकता है. अगर आप मिक्स करने जाओगे ऐसे टू डिसिमिलर पाउडर हैविंग डिफरेंट शेप ऑफ पार्टिकल, सो दे विल नॉट इजीली मिक्स्ड. एंड अगर मिक्स भी हो गए तो उसमें प्रॉपर मिक्सिंग नहीं आएगा. अगर प्रॉपर मिक्सिंग नहीं आएगा तो आपका यू कैन नॉट इंश्योर द डोसेज यूनिफॉर्मिटी इन द dosage uniformity in the formulation like tablet. So for a tablet to ensure the uniformity you need a proper mixing, and for proper mixing you should know what is the size of particle, what is the shape of particle, what is the volume, what is the density of that particle, okay, what is the particle size distribution of particular powder. So you need to understand these properties of, okay, and then only you can effectively formulate your formulation. So that's why a industrial pharmacist should know these properties regarding the powder, and that is nothing but the micromeritics. As the name of chapter is nothing but the micromeritics, so you have to measure the particle size in the micron, right? So first of all you should know what do you mean by micron, and what is how many 1 micron is one micron is equal to how many
meter or how many millimeter. So size in given in the micron. Size of these particles will be given in the micron. So 1 micron is equal to, remember, 1 micron or 1 micrometer. Previously it was known as a micron and now it is known as a micrometer. So 1 micrometer is 10 raised to minus 3 millimeter. 1 micron कितना होता है? 1 micron is equal to 10 raised to minus 3 millimeter. 1 micron is equal to 10 raised to minus 6 meter. 1 micron कितना होता है? 10 raised to minus 6 meter. ठीक है, minus 3 millimeter and minus 6 meter. Okay, 1 micron is equal to 10 raised to minus 3 millimeter and 1 micron is equal to 10 raised to minus 6 meter. तो यहाँ पे डिफरेंस देखो, याद रखो ये. ओके, देन मिली माइक्रोन, द टर्म मिली माइक्रोन और नैनोमीटर. सो व्हाट मिली माइक्रोन और नैनोमीटर. सो 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 9 meter. Remember, 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 9 meter. Then 1 nanometer is equal to also, that is a 10 raised to minus 6 millimeter, or 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 3 micrometer, right? So this is the relation you should know. 1 micrometer is how many millimeter or how many meter or how many nanometer. Okay, likewise that. So again I will repeat it. 1 micron or 1 micrometer is equal to 10 raised to minus 3 millimeter. 1 micron is equal to 10 raised to minus 6 meter. Okay, then 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 9 meter, or 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 6 millimeter or 10 raised to minus 3 micrometer. So this is just a relation. Okay, you should know this. Now what is the application of this micromagnetics? This micromagnetics is applicable in a various aspects of your formulation. So first one is the release and dissolution. So dissolution and release will be affected by different particle size. So as you know that decrease in the particle size will increase the surface area, and if you increase the surface area, that will enhance the dissolution. Okay, that means release and dissolution, these process. For example, in case of tablet, this release and dissolution is very important in case of tablet and capsule. Okay, so अगर tablet capsule है तो उसका dissolution होना चाहिए, उसका drug का release होना चाहिए, तभी जाके वो pharmacological activity दिखाएगा. So if the tablet is made up of very fine particles, that means they will offer a huge surface area and it will be absorbed very faster. Absorption is inversely proportional to the surface area. Okay, that's why release and dissolution is affected by particle size, and which is inversely proportional to the dissolution. Okay, which is inversely proportional to dissolution. Okay, so there is if particle size decreases, that means if decrease in the particle size is there will be increased dissolution. So that's why you need to understand this micromagnetics. Again, absorption of drug and its action. So obviously decrease in the particle size, there will be higher will be dissolution and higher will be the bioavailability. Then again, physical stability. For example, in case of your suspension and emulsion, dispersion, decrease in the particle size, less will be the particle size in the suspension or emulsion, better will be the stability. Stability problem is also resolved. So this micromagnetics is applicable for physical stability of certain formulation, like your dispersion, then emulsion, suspension. So smaller will be the particle size, better will be the stability in case of dispersion, and due to increased Brownian motion. ठीक है, जैसे particle size कम हो जाएगा उसमें Brownian motion increase हो जाएगा. Okay, so Brownian motion means interparticular collision, so that will be increased, and that is a factor for stability of dispersion. So higher will be the Brownian motion, higher will be the stability in case of suspension. Okay, suspension and dispersion. So that is another application. Now again, uniformity of content. So uniformity in the particle size distribution will ensure the uniformity of dosage. अगर आपके जो टैबलेट बना रहे हो पैरासिटामोल का, मान लीजिए एग्जांपल, सो पैरासिटामोल का टैबलेट बना रहे हो तो आप API लेंगे पैरासिटामोल का, उसके बाद में आप क्या लेंगे, टाल्क, डिसिटिग्रेट वगैरह बाकी का एडिटिव वगैरह. So all the diluents or additives and paracetamol powder, they should have at least similar particle size. Okay, then only you can ensure the dosage uniformity. अगर particle size paracetamol का कम है और बाकी का ज़्यादा है, okay, बाकी जो मटेरियल यूज़ करे एडिटिव्स उसका particle size ज़्यादा है, तो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगा. प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हुआ
तो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगा, तो प्रॉपर ग्रैनुलेशन नहीं होगा और बाद में कंटेंट यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि आपने 500 मिलीग्राम पैरासिटामोल का टैबलेट लिया बनाया और उसमें 300 मिलीग्राम ही पैरासिटामोल है, तो क्या यूज़ है उसका? सो यू कैन नॉट इंश्योर द डोसेज यूनिफॉर्मिटी। सो यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज मस्ट बी देयर फॉर ऑल your API plus additives so that you can ensure the uniformity of content, right? Then again particle size or diameter, particle size and diameter. So powder का जो particle है उसका जो size है and उसका जो diameter है, particle size and diameter, these two are known as the fundamental properties of particle. So याद रखो, यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, what are the fundamental properties of the powder and what are the derived properties of powder. So particle size and diameter, particle diameter and particle size, these are the two fundamental properties of the particle. Okay, whereas volume, then density, porosity, these are known as the derived properties of powder. Okay, now derived properties, they are derived from your fundamental properties. ठीक है, fundamental property कौन सा है? Size and diameter. तो size and diameter उसके बेसिस के ऊपर बाकी प्रॉपर्टी जो है जैसे डिराइव्ड प्रॉपर्टीज जैसे डेंसिटी, पोरोसिटी, डिराइव्ड हो जाए, ये फॉर्मुलेट हो जाए. सो दैट्स व्हाई फंडामेंटल प्रॉपर्टीज याद रखो, पार्टिकल साइज एंड डायमीटर. देन डिराइव्ड प्रॉपर्टीज क्या है? वॉल्यूम, डेंसिटी, पोरोसिटी, दे आर द डिराइव्ड प्रॉपर्टीज ऑफ योर पाउडर. ओके, ये याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. एंड दूसरा चीज़ ये है कि ये याद रखो, साइज 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर और 10⁻6 मीटर और 10⁻9 नैनोमीटर. सॉरी 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 10⁻3 माइक्रोमीटर. ये याद रखो. नाउ विल सी द नेक्स्ट पॉइंट, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाउडर. पाउडर का कैरेक्टराइजेशन कैसे करेंगे? व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट आर यूज्ड टू कैरेक्टराइज द पाउडर. पाउडर का कैरेक्टराइज कैसे करेंगे? पाउडर का डिस्क्रिप्शन कैसे करेंगे? यू कैन कैरेक्टराइज द पाउडर बाय यूजिंग इट्स शेप, size. You can characterize the powder by using size, shape, volume, surface area, density, porosity and flow properties. So these are the different characteristics that can be utilized to characterize the particle. Particle कैसा है, उसका shape कैसा है, उसका size कितना है, उसका volume कितना है, उसका surface area कितना है, उसका density क्या है, उसका porosity क्या है, उसका flow properties क्या है उस powder का. So that's how you can characterize the particles or powders. Okay, now so you can see particle may be of different size. Particle क्या होते हैं पाउडर में? different size के होते हैं. जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे spherical ये particle spherical है और ये particle spherical rough है. So it is a spherical rough particle. It is a spherical irregular. This one is a spherical irregular. Then this one is a rounded. This one is a acicular. This one is a acicular. This one is known as angular. It is also again angular. Elongated, irregular. Then dendritic. So these are the different geometric description of the particle. So ideally particle should be spherical. ठीक है, ideal particle कैसा होना चाहिए? Spherical होना चाहिए. लेकिन वैसा होता नहीं है. So ideal particle must be spherical. But most of the pharmaceutical powders they will not have ideal particle size, particle shape. ठीक है, particle के shape कितने होते हैं? ये देयर आर डिफरेंट पार्टिकल शेप. स्फेरिकल हो सकता है लेकिन उसका सरफेस रफ हो सकता है, तो सब स्फेरिकल रफ. स्फेरिकल इरेगुलर मतलब दिखने में स्फेरिकल है लेकिन उसका सरफेस इरेगुलर है, स्फेरिकल इरेगुलर. या फिर राउंडेड हो सकता है, एंगुलर हो सकता है, इलोंगेटेड इरेगुलर हो सकता है, एसिकुलर हो सकता है, एंगुलर हो सकता है, डेंड्रेटिक हो सकता है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल रिलेटेड टू ज्योमेट्रिक शेप एंड इरेगुलरिटी. नाउ कंसीडर अ स्फीयर, कंसीडर अ राउंड पार्टिकल. स्फीयर विल हैव अ स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ पाई डी स्क्वायर का उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा. जो स्फीयर होता है उसका पाई डी स्क्वायर का सरफेस एरिया होगा और उसका वॉल्यूम कितना होगा? 1/6 इंटू पाई डी क्यूब. ठीक है, 1/6 इंटू पाई डी क्यूब. पाई कॉन्स्टेंट होता है. डी मीन्स क्या? डायमीटर. ठीक है, डी मीन्स क्या? डायमीटर. जो डायमीटर होता है इसका वो डायमीटर. सो पाई डी स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम विल बी 1/6 पाई डी क्यूब. सो फॉर पार्टिकल मेजरमेंट, ओके, अभी हर एक पार्टिकल तो स्फेरिकल नहीं होता. दूसरा पार्टिकल जो है वो स्फीयर के कंपैरिजन में उसका डिस्क्राइब करते हैं. सो योर पाउडर पार्टिकल विल नॉट बी ए स्फेरिकल ऑलवेज. ओके, सो इफ इट इज स्फेरिकल दैट इज वेल एंड गुड, बट इट विल नॉट बी ऑलवेज स्फेरिकल. वो स्फेरिकल नहीं होगा हर टाइम पे, वो कुछ अलग अलग शेप का होगा. सो इट्स शेप कैन बी
डिस्क्राइब्ड इन कंपैरिजन विद द स्फीयर. स्फीयर विल बी आइडियल एंड उसके कंपैरिजन में उसका शेप साइज ओके डिस्क्राइब करते हैं. सो फॉर एग्जांपल कंसिडर अ पार्टिकल हैविंग सरफेस एरिया AS. तो पार्टिकल का सरफेस एरिया क्या होगा AS इंटू डी स्क्वायर AS इंटू DP स्क्वायर एंड उसका वॉल्यूम होगा AV इंटू DP क्यूब. एंड इफ यू अरेंज द रिलेशनशिप ऑफ दिस पार्टिकल एंड स्फीयर, relationship between sphere and particle regarding the surface area and regarding the volume, you will get a one equation known as a shape factor. So by rearranging the equation, the shape factor of particle will be 6. Okay, AS divided by AV मतलब specific surface area divided by specific volume. Specific surface area of sphere or particle divided by specific surface area of sphere or your particle, specific volume of sphere or particle. So specific area divided by specific volume, you will get a shape factor. कि उसका शेप कैसा है, कैसे मालूम होगा आपको कि उसका सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम जो है उसको डिवाइड करो तो वो आएगा आपका शेप फैक्टर. सो शेप फैक्टर फॉर स्फीयर इज 6. याद रखो यहाँ पे शेप फैक्टर कितना है स्फीयर का 6 है. 6 अगर किसी का शेप फैक्टर आता है तो उसका मतलब वो पार्टिकल क्या है राउंड है. इट इज़ अ स्पेरिकल इन नेचर. अगर शेप फैक्टर 6 है तो मतलब उसका मतलब क्या है कि पार्टिकल क्या है राउंडेड है और स्पेयर है. नाउ इफ शेप फैक्टर इज मोर देन 6, अगर शेप फैक्टर क्या है किसी पार्टिकल का 6 से ज़्यादा आता है, सो इफ शेप फैक्टर ऑफ पार्टिकल इज मोर देन 6, दैट मीन्स द पार्टिकल इज एसिमेट्रिक. ठीक है, अगर पार्टिकल का शेप फैक्टर 6 आता है तो दैट इज सिमेट्रिक पार्टिकल. ओके, अगर ज़्यादा आता है उससे तो दैट इज एसिमेट्रिक पार्टिकल. So minimum possible value for shape factor is 6 and that is nothing but for the spherical shape. Okay, now if it is more than 6, that means it is asymmetric particle. Now what is meant by particle number? So number of particle per unit weight. मतलब 1 ग्राम में 1 ग्राम पाउडर लिया आपने, उसमें कितने पार्टिकल है? नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वेट, that is denoted by N, capital N, and is given in the terms of volume number, mean diameter. ओके, तो उसको कैसे करेंगे? तो उसका एक फॉर्मूला होता है पार्टिकल नंबर इज इक्वल टू N इंटू पार्टिकल नंबर इज इक्वल टू N. ओके, पार्टिकल नंबर N इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय N d Vn क्यूब इंटू रो. अभी ये 6 क्या है और N d पाई डी रेस टू 3, मतलब ये हो गया वॉल्यूम. ये हो गया वॉल्यूम एंड रो क्या है? इट इज़ अ डेंसिटी ऑफ पाउडर. ठीक है, सो बाय यूजिंग स्फीयर और बाय कंपेयरिंग विद द स्फीयर, आइडियल क्या होता है पार्टिकल स्फेरिकल, तो उसका जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, 1/6 पाई डी क्यूब, तो वो वॉल्यूम. ठीक है, और यहाँ पे क्या है स्फीयर नहीं, यहाँ पे क्या है आपका पाउडर है. पाउडर का डेंसिटी जितना है उसको मल्टीप्लाई करो. सो पार्टिकल नंबर विल बी 6 डिवाइडेड बाय pi d cube into rho, that will give you particle number. Okay, now there are different shapes of particle. I have told you, for example tetrahedron, उसका जो है दोस्तों शेप फैक्टर आता है उसका 0.671, ऐसा क्यूब का इतना आता है. ऑक्टाहेड्रॉन का 0.8 वगैरह आता है 0.8, कोन का आता है 0.7, सिलेंडर का आता है 0.8. स्फीयर का शेप फैक्टर स्फीयर का 6 है, लेकिन ये स्फेरिसिटी जो होता है स्फीयर का आता है 1. तो नाउ विल सी, उसके ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके जीपेट के लिए, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, बट इसमें ये एक ही क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पे कि इफ शेप फैक्टर ऑफ पार्टिकल इज मोर देन 6, दैट मीन्स द पार्टिकल विल बी एसिमेट्रिक. इफ शेप फैक्टर ऑफ पार्टिकल इज 6, दैट मीन्स पार्टिकल इज अ राउंडेड और सिमेट्रिक. ओके, याद रखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है. और नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल शेप, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल साइज, शेप एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया. तो यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल साइज कैसा होता है, इसका शेप क्या होता है, वॉल्यूम क्या है. और पार्टिकल साइज क्या है? ड्यू टू एसिमेट्रिकल नेचर मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल पाउडर विल बी एसिमेट्रिक इन नेचर. जो भी फार्मास्यूटिकल यूज़ करते हैं पाउडर, उसमें मैक्सिमम पाउडर जो है वो
उसका जो शेप है वो एसिमेट्रिकल होता है. ड्यू टू एसिमेट्रिकल नेचर ऑफ मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल पार्टिकल्स इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ द स्फीयर. तो ये एसिमेट्रिकल पार्टिकल होते हैं मोस्ट ऑफ द पार्टिकल फार्मास्यूटिकल पाउडर्स का. तो उसका शेप डिस्क्राइब करना और उसका साइज डिस्क्राइब करना इतना ईजी नहीं है. सो दैट्स वाई सो स्फीयर एज इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड एंड इन कंपेरिजन विद दैट स्फीयर राउंडेड शेप का जो स्फीयर होता है उसके कंपेरिजन में आपके पाउडर का साइज डिसाइड करते हैं. ओके, बाय मेजरिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ डायमीटर्स. ओके, तो particle size due to asymmetrical nature of the most of the pharmaceutical powder, so it can be expressed as a equivalent diameter of the sphere. ये स्फीयर का डायमीटर के कंपैरिजन में आपके पार्टिकल का डायमीटर कितना है तो उसके बेसिस पे उसका पार्टिकल साइज डिसाइड होता है. बिकॉज स्फीयर इज अ सिमेट्रिकल. नाउ फर्स्ट इज नोन एज अ सरफेस डायमीटर. फर्स्ट इज नोन एज अ डिफरेंट काइंड ऑफ डायमीटर. First one is known as a surface diameter. What is the surface diameter? It is denoted by ds. Surface diameter is denoted by ds. Okay. Now diameter of the sphere having same surface area as that of the asymmetric particle, that is known as a surface diameter. मतलब जो राउंडेड स्फीयर है उसका जो सरफेस एरिया है उतना ही सरफेस एरिया आपका अगर असिमेट्रिक पार्टिकल का है तो उसको बोलेंगे सरफेस डायमीटर. Okay, so diameter of sphere having same surface area as that of the asymmetric particle, that is known as the surface diameter. Now volume diameter. So diameter of sphere having same volume as that of the asymmetric particle. अगर आपके asymmetric particle जो है उसका और sphere का वॉल्यूम सेम है तो उसको बोलेंगे वॉल्यूम डायमीटर. So diameter of the sphere having same volume as that of the asymmetric particle. So it is known as a volume diameter. Now next one is a projected area diameter. Projected area diameter. So diameter of sphere having same area as that of the asymmetric particle when observed under the microscope. तो ये हो गया आपका projected area diameter. तो माइक्रोस्कोप के अंडर आपने ऑब्जर्व किया, ओके, तो उसका जो एरिया है वो सेम है लाइक स्फीयर, तो उसको बनेंगे प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर. सो डायमीटर ऑफ द स्फीयर हैविंग सेम area as that of the asymmetric particle observed under microscope. अगर आपने माइक्रोस्कोप के अंदर एक पार्टिकल ऑब्जर्व किया एसिमेट्रिक पार्टिकल है और दूसरे माइक्रोस्कोप में और वही माइक्रोस्कोप में स्फीयर का भी ऑब्जर्व किया तो स्फीयर का जो डायमीटर है उस मतलब स्फीयर का है उसका एरिया और आपका एसिमेट्रिक पार्टिकल का एरिया सेम ही है माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसको बोलेंगे प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर. ओके, सो डायमीटर ऑफ स्फीयर हैविंग सेम एरिया as that of the asymmetric particle when observed under microscope. Now next one is a Stokes diameter. Stokes diameter मतलब क्या? Stokes diameter मतलब ये Stokes law इन्वॉल्व होता है. So Stokes law for sedimentation. So it is nothing but the diameter of sphere having same sedimentation rate as that of the asymmetric particle. मतलब आपका ओरिजिनल स्फीयर शेप पार्टिकल और एसिमेट्रिक पार्टिकल जो है पाउडर में वो अगर सेडिमेंट होता है एट द सेम रेट then that is nothing but the Stokes diameter. Stokes diameter is nothing but the diameter of sphere having sedimentation rate same to the asymmetric particle. Now we'll see the next point again. These are the different kind of diameters. Now sieve diameter. Sieve diameter denoted by d sieve. D sieve मतलब sieve diameter. Diameter of sphere that passes through a particular same sieve mesh aperture as that of the asymmetric particle. मतलब अगर एसिमेट्रिक पार्टिकल आपका और स्फेरिकल पार्टिकल आपका दोनों एक ही सीव में से पास होते हैं, मान लीजिए कि 10 नंबर सीव में पास होते हैं या फिर 256 सीव नंबर से पास होते हैं. 10 नंबर का तो बहुत ही कोर्स होता है. सो अगर 256 नंबर से आपका एसिमेट्रिक पार्टिकल भी पास होता है और आपका स्फीयर भी पास होता है तो उसको बोलेंगे सीव डायमीटर. सो डायमीटर ऑफ स्फीयर दैट पासेस थ्रू अ सेम सीव एज दैट ऑफ द पार्टिकल, एसिमेट्रिक पार्टिकल, दैट इज अ सीव नंबर. सो डायमीटर. Volume surface diameter. So diameter of sphere having same volume to the surface area ratio as that of the asymmetric particle. Volume surface diameter मतलब क्या? Denoted by dVs. So diameter of sphere having same volume to the surface area ratio. ये यहाँ पे क्या है? रेशियो है वॉल्यूम का और सरफेस एरिया का. तो अगर स्फीयर का वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशियो अगर एसिमेट्रिक पार्टिकल से सेम है सो दैट इज नोन एज वॉल्यूम सरफेस एरिया डायमीटर.
Again, diameter of sphere having same volume to the surface area ratio as that of the asymmetric particle. So it is known as a volume surface diameter. So these are the different, मतलब आपका asymmetric particle आप कैसे describe करोगे in comparison with the sphere. तो there are different kind of diameters. So surface diameter हो गया आपका, उसके बाद में volume diameter, उसके बाद में projected area diameter, Stokes diameter, sieve diameter, and volume surface diameter. So these are the different kind of diameters or different kind of diameters that can be described in comparison with the sphere. Now there are different shapes of particle. Particle का shapes may be different. It may be either smooth, spherical smooth. एक particle आपका spherical हो सकता है, spherical smooth हो सकता है, या फिर रफ हो सकता है, स्फेरिकल इरेगुलर हो सकता है, राउंडेड एंगुलर जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, इलोंगेटेड इरेगुलर हो सकता है, एसिकुलर हो सकता है, एंगुलर हो सकता है, डेंड्राइकोस. शेप फैक्टर क्या है? शेप फैक्टर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया. ओके, शेप फैक्टर इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया. शेप फैक्टर क्या है? शेप फैक्टर इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया फैक्टर टू द वॉल्यूम फैक्टर ऑफ द स्फीयर. स्फीयर का सरफेस एरिया कितना है और वॉल्यूम कितना है. ओके, और एसिमेट्रिक पार्टिकल का सरफेस एरिया कितना है और वॉल्यूम कितना है, उसका जो डिफरेंस है, उसका जो फैक्टर है दोनों बीच के, तो उसका जो रेशियो है, ए फैक्टर इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया फैक्टर टू द वॉल्यूम फैक्टर ऑफ स्फीयर एंड इट इज अ 6. अगर शेप फैक्टर 6 आता है मतलब आपका स्फीयर है, वो पार्टिकल स्फीयर शेप का है. अगर 6 से ज़्यादा आता है दैट मीन्स पार्टिकल इज एसिमेट्रिक. तो ये अब यहाँ पे इतना याद रखो. Now characteristics of powder again: powder size, particle number, surface area, volume, flow properties, and density. Powder size. So powder is nothing but the collection of particles. Powder क्या है? Collection of particles. Now if particles are of uniform size, अगर आपके पास मान लीजिए कि दो powder है, so powder is nothing but the collection of particles. Now if particles are of uniform size, वो जो powder है उसमें जो particle है सब पार्टिकल यूनिफॉर्म साइज के, मतलब एक ही साइज है उसका. तो मान लीजिए कि 2 माइक्रोन का पार्टिकल है सब. सो दैट पाउडर इज नोन एज अ मोनो साइज और मोनो डिस्पर्स पाउडर. सो ये पाउडर इज हैविंग सेम पार्टिकल साइज. ओके, सो दैट पाउडर इज नोन एज अ मोनो साइज और मोनो डिस्पर्स पाउडर. नाउ ओके, एंड ये पाउडर इज हैविंग नॉन यूनिफॉर्म साइज ऑफ पार्टिकल. अगर पार्टिकल का साइज यूनिफॉर्म नहीं है किसी पाउडर में, उसको बोलेंगे पॉली डिस्पर्स पाउडर. ओके, तो मोनो साइज और मोनो डिस्पर्स पाउडर किसको बोलेंगे? जिस पाउडर में उसकी पार्टिकल्स क्या है? यूनिफॉर्म है, उसको बोलेंगे मोनो साइज और मोनो डिस्पर्स. ठीक है, अगर कोई पाउडर है उसमें पार्टिकल साइज अलग अलग है पार्टिकल का, उसको बोलेंगे पॉली डिस्पर्स. मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल पाउडर्स दे आर पॉली डिस्पर्स पाउडर. ओके, नाउ मोनो डिस्पर्स पाउडर हैज इट्स ओन एप्लीकेशन. मोनो डिस्पर्स पाउडर, अगर किसी पाउडर में पार्टिकल साइज जो है वो यूनिफॉर्म है तो उसको बोलेंगे मोनो डिस्पर्स. मोनो डिस्पर्स पाउडर हैज ओन एप्लीकेशन, इट्स ओन एप्लीकेशन. ठीक है, उसका भी एप्लीकेशन होता है. जैसे मान लीजिए कि आपका कोई हेपा फिल्टर है, तो हेपा फिल्टर का आपको कैलिब्रेट करना है. सो इफ़ यू वांट टू कैलिब्रेट द हेपा फिल्टर्स, सो यू नीड अ यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज. सो मोनो साइज पार्टिकल और मोनो साइज पाउडर विल बी यूज्ड इन दैट कंडीशन. अगेन जैसे मान लीजिए आपके फार्माकोग्नोसी में एक होता है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड. सो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड में क्या होता है कि लाइकोपोडियम स्पोर जो होते हैं दे आर एक्सट्रीमली यूनिफॉर्म इन द साइज. तो उनका जो यूनिफॉर्म साइज जो है वो यूनिफॉर्म होता है. सो लाइकोपोडियम स्पोर इज ऑल्सो मोनो साइज पाउडर. सो दैट इज यूज्ड फॉर द कैरेक्टराइजेशन. ठीक है, वो भी कैरेक्टराइजेशन के लिए यूज़ करते हैं. सो इट इज़ नाउ मोनो साइज पाउडर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिव. जैसे सीव ले लो, एक 10 मेश सीव ले लो या फिर 100 मेश सीव ले लो कि 100 मेश सीव है आपका, उसमें पार्टिकल पास करो और जो पार्टिकल पास हुए वही ले लो, तो वो क्या होंगे? मोनो डिस्पर्स. मोनो साइज पाउडर्स आर यूज्ड इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पार्टिकल साइज एनालाइजर. ठीक है, पार्टिकल साइज एनालाइजर जो है उसका स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए क्या है? मोनो साइज पाउडर लगता है. एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ पोर साइज ऑफ द फिल्टर, मैं बोला जैसे हेपा फिल्टर. Then effective immunization, antigen absorption on the particle. Most of the pharmaceutical powders they are polydisperse. Polydisperse मतलब क्या? Non uniform particle size.
Okay, and to describe such powder you need a different characteristics. Like you need to describe such powder by using the arithmetic mean or geometric mean, then harmonic mean. Okay, so there are different frequency distribution curves. So that is not again much important for your GPAT. That's why I have not described those things in the detail. तो बस इतना याद रखो कि पॉली डिस्पर्स पाउडर है तो उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे. सो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का उस तरीके से आपको उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. नाउ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इज अ नंबर ऑफ वेट ऑफ पार्टिकल लाइंग विद इन अ सर्टन रेंज. पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलेंगे कि मान लीजिए कि आप पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलेंगे. मान लीजिए आपके पास 1 ग्राम पाउडर है, तो उसमें कुछ 10 माइक्रोन के पार्टिकल जैसे मान लीजिए कि 1000 है और 5 माइक्रोन के पार्टिकल मान लीजिए कि 5000 है. पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है कि 5 माइक्रोन टू 10 माइक्रोन साइज के कितने पार्टिकल्स हैं, 1 माइक्रोन टू 5 माइक्रोन साइज के कितने पार्टिकल. सो दैट इज नथिंग बट द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज नथिंग बट द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इज द नंबर or weight of particles lying within the certain range, and it can be described by distribution curve. Okay, data analysis, distribution curve, data analysis, like a frequency distribution curve, cumulative frequency distribution curve, log normal distribution curve. Again, this is not much important for your GPAT. So particle size distribution can be described by different distribution curve. Particle size of pharmaceutical powder are strictly maintained to get a optimum biological activity. पार्टिकल साइज जो है फार्मास्यूटिकल्स में वो मेंटेन किया जाता है कि पर्टिकुलर रेंज में ही उसका पार्टिकल साइज होना चाहिए. जैसे मान लीजिए एस्पिरिन हो गया या फिर आपका डेक्सामेथासोन हो गया, तो उनका ऑप्टिमम एक्टिविटी मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जैसे फॉर एब्सॉर्प्शन पार्टिकल साइज जितना कम होगा उतना एब्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा. तो यू नीड टू कीप पार्टिकल साइज ऑप्टिमम, ठीक है, फॉर फार्मास्यूटिकल powders to get a desired pharmacological activity or optimum pharmacological. For example, I have listed over here some. तो जैसे लिखिए यहाँ पे टेबल दिया है. सो ड्रग डोसेज फॉर्म एंड पार्टिकल साइज रिक्वायरमेंट. जैसे एस्पिरिन होता है आपका, एस्पिरिन डिस्पोजेबल टैबलेट में आपका उसको डोसेज फॉर्म अवेलेबल है एस्पिरिन DT. तो उसका पार्टिकल साइज होना चाहिए 180. सो ऑल द पार्टिकल्स ऑफ एस्पिरिन शुड बी पास थ्रू 180 CU नंबर. तो डिजायर पार्टिकल साइज क्या है उसका 180. हाइड्रोकॉर्टिजोन ये स्टीरॉयडल ड्रग है, टॉपिकली यूज़ करते हैं क्रीम में. सो इसका पार्टिकल साइज कितना होना चाहिए 90% ऑफ पार्टिकल शुड बी लेस देन 5 माइक्रॉन. 90% ऑफ पार्टिकल शुड बी लेस देन 5 माइक्रॉन एंड बाद में रेस्ट ऑफ द 10% में भी लेस देन 50 माइक्रॉन. तो 90% क्या होना चाहिए लेस देन 5 माइक्रॉन, बाकी 10% आपको लेस देन 50 माइक्रॉन होना चाहिए. ऐसा पार्टिकल साइज इसका होना चाहिए टू गेट ए ऑप्टिमम बायोलॉजिकल एक्ट. नाउ अगेन अमॉर्फस इंसुलिन. सो उसका पार्टिकल साइज कितना होना चाहिए, उसका फॉर्मुलेशन होता है इंजेक्शन का, एंड उसका पार्टिकल साइज होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 2 माइक्रॉन. उससे ज़्यादा पार्टिकल साइज नहीं होना चाहिए. अमॉर्फस जिंक इंसुलिन यू शुड हैव पार्टिकल साइज लेस देन और इक्वल टू 2 माइक्रॉन. अगेन इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन इंसुलिन जिंक 10 to 40 micron is the particle size requirement. Again for betamethasone it is again steroid. Betamethasone क्या है, steroid है and it is provided in the tablet. Okay, so इसका particle size होना चाहिए 90% particle should be less than 5 micron. Okay, less than or equal to 5 micron and not more than 50 micron. इसमें particle 50 micron से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 micron से कम ही होना चाहिए. That's why you have to ensure the uniform particle size to get an optimum biological act. Methods, what are the different methods for determination of particle size? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर GPAT में, नाइपर में, ट्रेडेंस पर, बाकी सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट. Methods to determine the particle size. How you can determine, how you can calculate the particle size of particles present in the powder. So what are the different methods to determine the particle size? फर्स्ट वन इज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी मतलब क्या कि पाउडर ले लो, मान लीजिए कि एक तो 1 ग्राम पाउडर लिया आपने और उसका उसमें मीडियम डाला और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया. सो दैट इज नथिंग बट द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी. तो इन केस ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी
Determination of size of particle by optical microscopy. So you measure projected area diameter. ये important है. Projected area diameter is measured. Projected area diameter is measured in case of optical microscopy. ये याद रखो. Now it is used for the particle size analysis in the suspension, globule size in the emulsion. So what is the use of optical microscopy? To measure the particle size in case of suspension, emulsion. Particle size in case of aerosols, diameter. Okay, so here you use or here you measure projected area diameter. Once you got a projected area diameter, that diameter is converted to volume diameter, and then you can find the size. Okay, so that's all. Diameter disadvantage of this optical microscopy. Diameter is obtained from only 2 dimensional. यहाँ पे जो डायमीटर मिल रहा है प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर, वो सिर्फ 2 डायमेंशन में है. मतलब उसका सिर्फ हाइट एंड विड्थ. यू आर जस्ट गेटिंग हाइट एंड विड्थ, सो ओनली 2 डायमेंशनल. सो यू आर नॉट गेटिंग द डेप्थ. it is the diameter measured of particle is only from 2 dimension. And again it is a tedious process. थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, tedious process है, और लार्ज सैम्पल इज रिक्वायर्ड. इन दिस केस लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल यू हैव टू मेजर. आपको 500 पार्टिकल्स मेजर करना है एक टाइम पे, तो थोड़ा सा टेडियस प्रोसेस होता है. सो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल यू हैव टू मेजर. दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी. रिमेंबर यहाँ पे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर जो है वो मेजर करते हैं, यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ पार्टिकल साइज इन द सस्पेंशन, ग्लोब्यूल साइज इन द इमल्शन, देन पार्टिकल साइज इन द एरोसोल. तो डिसएडवांटेज क्या है कि पार्टिकल डायमीटर जो है वो सिर्फ 2 डायमेंशन में ही मिलता है आपको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में. लार्ज नंबर ऑफ सैंपल इज रिक्वायर्ड एंड लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल यू हैव टू मेजर. ठीक है, यहाँ पे कैलिब्रेशन करना पड़ता है उसका. माइक्रोस्कोपिक मेथड में, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में जो आपका नॉर्मल माइक्रोस्कोप है उसका कैलिब्रेट करना पड़ता है विद द पार्टिकल साइज. वो अलग, उसमें उसको आप बाद में पढ़ लेना कैसे कैलिब्रेट करते हैं, वो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी भी क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाट काइंड ऑफ डायमीटर यूज्ड इन मेजर्ड इन द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी. व्हाट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग द पार्टिकल साइज ऑफ वन ऑफ फॉलोइंग. डायमीटर मेजर्ड इन द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी कौन सा है? दैट इज द प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर. सो व्हाट इज द प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर? सो इट इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ सर्कल with the same area as that of the particle observed under microscope to the surface on which particle is rest. So what is the projected area diameter? Diameter of circle or diameter of sphere with the same area as that of the observed particle, okay, or asymmetric particle. That is the projected area diameter. There are other kind of diameters also, those are used in the optical microscopy. So these are nothing but the Martin diameter and Verret diameter. Martin diameter and Verret diameter. So Martin diameter क्या होता है? The length, okay, it is the, ये बाद में मैं आपको बोलूँगा डायग्राम से. The length of line that bisect the particle image. It can be drawn in any direction, but must be drawn in the same direction for other particle. ये मैं डायग्राम से दिखाऊंगा Martin diameter क्या होता है. Verret diameter, distance between two tangent to the opposite side of parallel to some fixed direction. ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ. You can see over here. So यहाँ पे ये स्फीयर है, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका एसिमेट्रिक पार्टिकल है. ये एसिमेट्रिक पार्टिकल. एसिमेट्रिक पार्टिकल कैन बी कैरेक्टराइज्ड इन टर्म्स ऑफ साइज, ओके, बाय कंपेयरिंग विद द स्फीयर. ये स्फीयरिकल साइज का जो है उसके कंपैरिजन में एसिमेट्रिक पार्टिकल का डिस्क्राइब करते हैं. जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट वन इज द प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर. प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर वो क्या है? सो डायमीटर ऑफ स्फीयर है. डायमीटर ऑफ स्फीयर हैविंग सिमिलर सरफेस एरिया एज दैट ऑफ द एसिमेट्रिक पार्टिकल. वो होते हैं प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर. नाउ मार्टिन डायमीटर क्या है? मार्टिन डायमीटर जो पार्टिकल है और स्फीयर है दैट विल बाइसेक्ट द डायमीटर दैट बाइसेक्ट द पार्टिकल. ठीक है, हो गया आपका मार्टिन डायमीटर. वेरेट डायमीटर क्या है? वेरेट डायमीटर मतलब क्या कि जो एसिमेट्रिक पार्टिकल है उसका टेंजेंट नहीं करो दोनों साइड से. जो कोई टेंजेंशियल है उसको, उसके बीच में का जो लाइन है उसको बोलेंगे वेरेट डायमीटर. सो वेरेट डायमीटर, ओके. So these are the 3 kind of diameter that are measured by optical microscopy.
तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमीटर इज नॉट मेजर्ड इन द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। उसमें ऑप्शन देंगे कि प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर, मार्टिन्स डायमीटर, फेरेट डायमीटर एंड वॉल्यूम डायमीटर। वॉल्यूम डायमीटर वो आप मेजर नहीं करेंगे, तो उसमें कौन से डायमीटर मेजर करते हैं ये याद रखो। नाउ विल सी द नेक्स्ट मेथड ऑफ पार्टिकल साइज मेजरमेंट। दूसरा मेथड है सीविंग मेथड। सीविंग मेथड मतलब क्या है, यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ सीव्स यूज कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि यू हैव टू अरेंज ए 5 सीव्स इन अ सीक्वेंस, ओके, एंड उसके बाद में उसको पाउडर को उसके पास करो, तो जो सीव के ऊपर जो पाउडर रिटेन करेंगे उस पाउडर का साइज क्या होगा उतना। सो मोस्टली यूज्ड इन द कैप्सूल एंड टैबलेट फॉर्मुलेशन। सीविंग मेथड इज मोस्टली यूज्ड इन द टैबलेट एंड कैप्सूल फॉर्मुलेशन, ओके, एंड सीव डायमीटर इज एस्टिमेटेड। यहाँ पे क्या है, सीव डायमीटर is estimated. What is sieve diameter? We have seen the very first line. So diameter of sphere, same which passes through same mesh aperture of sieve as that of the asymmetric particle. So that is the sieve diameter. So sieving method में क्या है, sieve diameter measure करते हैं. In this method, the advantage of sieving method is the lower limit. You can measure 50 micron particle, okay, by sieving method. एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीविंग मेथड इज क्लॉगिंग। ये सीव क्या होंगे, क्लॉग होंगे, सीव क्या होंगे, बंद हो जाएंगे ड्यू टू मॉइस्चर प्रेजेंट इन द। तो आई एम नॉट टेलिंग यू ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग सीविंग मेथड। यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही लिया है। ये सीविंग मेथड क्या है, सीविंग मेथड से भी आप पार्टिकल साइज मेजर कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है सीव, व्हाट इज मीन बाय सीव। सीव इज नथिंग बट द, सीव क्या है कि सीव में जो मेश अपर्चर होता है, ठीक है, इस अपर्चर, तो उसका साइज जो होता है पर्टिकुलर साइज होता है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन कैरेक्टराइज द पार्टिकल साइज। अगर 10 मेश शिव से आपका पार्टिकल पास हो रहा है तो उसको बोलेंगे 10 मेश पार्टिकल। मान लीजिए कि 120 मेश शिव होता है पास, उसको बोलेंगे 120 मेश साइज पार्टिकल, लाइक दैट। नेक्स्ट मेथड इज द सेडिमेंटेशन मेथड। मेथड याद रखो, सेडिमेंटेशन मेथड। नाउ इट इज मोस्टली यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ सस्पेंशन इमल्शंस। जो सस्पेंशन इमल्शंस जो थे, मोस्ट ऑफ देम दैट दिस सेडिमेंटेशन मेथड इज यूज्ड। सेडिमेंटेशन मेथड अगेन इट इज अ मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज। इससे भी आप पार्टिकल साइज मेजर कर सकते हो, सेडिमेंटेशन मेथड। सो मोस्टली यूज फॉर फॉर्मुलेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ सस्पेंशन एंड इमल्शन, एंड आल्सो यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर। मॉलिक्यूलर वेट जो है पॉलीमर का, उसको मेजर करने के लिए भी उसको यूज करते हैं। नाउ इन दिस सेडिमेंटेशन मेथड स्टोक्स डायमीटर, ठीक है, स्टोक्स डायमीटर इज यूज्ड। स्टोक्स डायमीटर इज मेजर्ड। स्टोक्स डायमीटर क्या होता है, वी हैव सीन इन द फर्स्ट स्लाइड, पहले स्लाइड में ही देखा है स्टोक्स डायमीटर, ओके। द डायमीटर ऑफ स्फीयर दैट सेडिमेंट with the same rate of sedimentation as that of the asymmetric particle. Now for particle size determination by sedimentation method, you need a dilute sample. For example, suspension should be diluted 1 to 2%. Then you use for the sedimentation. Now again here for the sedimentation measurement of particle size by sedimentation method, the flow of that fluid should be laminar. Flow of fluid should be laminar, okay. यहाँ पे जो रेट ऑफ सेटलिंग होता है उसका जो फ्लो है वो क्या होना चाहिए, लैमिनर होना चाहिए। सो टर्बुलेंट नहीं होना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, लैमिनर होना चाहिए। सो इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 0.2, इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज मोर देन 0.2, that means the flow is turbulent, and if Reynolds number is less than 0.2, that means flow is laminar or uniform, okay. So remember one thing over here, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है। सो सेडिमेंटेशन मेथड फॉर पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 0.2। ये याद रखो, ये लाइन एज इट इज क्वेश्चन आया था जेपैट में। सेडिमेंटेशन मेथड, determination of particle size by sedimentation method, it is applicable when only if there is a Reynolds number is less than 0.2, that means the flow should be laminar। अगर वहाँ पे laminar flow है तो ही आपका sedimentation method applicable है पार्टिकल साइज मेजर करने के लिए, अदरवाइज नहीं। एंड अगेन पार्टिकल यहाँ पे सैम्पल शुड बी इन अ डाइल्यूट फॉर्म 1 to 2%, okay, and flow should be laminar, that is Reynolds number not exceeding 0.2,
अगर 0.2 से ज़्यादा रेनॉल्ड्स नंबर है तो टर्बुलेंट फ्लो होता है, 0.2 से कम है तो उसको बोलते हैं लैमिनार फ्लो और यूनिफॉर्म फ्लो और लैमिनार फ्लो। मेथड इज एप्लीकेबल हाउ टू प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट साइज, you can predict the exact size. Okay, now method is applicable to predict the size only if Reynolds number is not exceeding 0.2. तो उसमें एक स्टोक्स इक्वेशन होता है, रेट ऑफ सेटलिंग। स्टोक्स डायमीटर कैसे मेजर करेंगे, ऐसे स्टोक्स डायमीटर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18 न्यू एच डिवाइडेड बाय रो एस माइनस रो 0 इंटू जी टी। आई विल एक्सप्लेन दिस टर्म्स। तो एच क्या है, एच जो है इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ फॉल इन द टाइम, जैसे कितने डिस्टेंस में सेटल हो रहा है पार्टिकल। जैसे मान लीजिए टैंक है आपके पास और ऊपर से आपने पाउडर डाला है, तो पाउडर जब बॉटम में सेटल हो जाएगा उसके लिए कितना टाइम लगता है, वो जो बॉटम टू द टॉप उसका जो हाइट है उसको बोलेंगे एच। सो डिस्टेंस और हाइट, डिस्टेंस ऑफ फॉल इन द टाइम। उसके बाद में एन क्या है, न्यू क्या है, न्यू इज नथिंग बट द विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। उसके बाद में रो यस क्या है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, रो इस क्या है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, एंड रो 0 क्या है, डेंसिटी ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, एंड एच जी क्या है, जी इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे जी होने चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इज नथिंग बट द टाइम। स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन लैमिनार फ्लो और रेनॉल्ड्स नंबर इज नॉट एक्सेडिंग 0.2। तो रेनॉल्ड्स का इक्वेशन भी यहाँ पे दिया है मैंने, वी डी इंटू रो 0 इंटू इन 0। वी डी मतलब क्या, वॉल्यूम डायमीटर है इसका। उसके बाद रो 0 क्या है, विस्कोसिटी ऑफ योर डिस्पर्शन मीडियम, एंड एन 0 क्या है, रो 0 क्या है, डेंसिटी है, और ये क्या है, बेस्ड अपॉन द सेडिमेंटेशन मेथड देयर इज अनदर मेथड नोन एज एंडरसन पिपेट मेथड। इसके बारे में भी जीपैट 21 में भी क्वेश्चन आ चुका है, उसके प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आ चुका है, और जीपैट 22 में भी क्वेश्चन आ चुका है। सो एंडरसन पिपेट मेथड इज आल्सो बेस्ड अपॉन द सेडिमेंटेशन मेथड फॉर द पार्टिकल साइज मेजरमेंट। ठीक है, यहाँ पे याद रखो, एंडरसन पिपेट मेथड इज आल्सो बेस्ड अपॉन द सेडिमेंटेशन मेथड। यू गेटिंग और नॉट, समझ रहा है आपको, नहीं समझ रहा है, हेलो। एंडरसन पिपेट मेथड इज बेस्ड अपॉन द सेडिमेंटेशन मेथड फॉर पार्टिकल साइज मेजरमेंट। इसमें क्या है, एंडरसन पिपेट होता है, क्या है एंडरसन पिपेट। सो मेथड बाय सेडिमेंटेशन ओनली। ओके, तो इसमें एक एंडरसन का पिपेट होता है, तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट। सो 550 ml मेजरिंग सिलेंडर होता है, उसमें सिलेंड्रिकल वेसल होता है, सॉरी 550 ml सिलेंड्रिकल वेसल, और उसमें 10 ml पिपेट भी होता है। नाउ व्हेन पिपेट इज इंसर्टेड और इट इज प्लेस्ड इन द सिलेंडर, द लोअर टिप ऑफ द पिपेट इज अबाउट 20 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ सस्पेंशन। ये पूरे जो मेथड्स है वो मेथड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते आता है। यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 2 और 3 MCQ फ्रॉम दिस पॉइंट साइज मेजरमेंट की। एंडरसन पिपेट जो है कुछ इस तरीके का होता है आपका, ये जो डायग्राम दिख रहे हैं आप एंडरसन। तो यहाँ पे ये थ्री वे क्लॉक होता है यहाँ पे, और ये एंडरसन का पिपेट होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे वॉल्यूम सिलिंड्रिकल वेसल भी होता है। तो आपको क्या करना है, डाइल्यूट सस्पेंशन यहाँ से डालना है विद इन अ टाइम इंटरवल। मान लीजिए कि 15 मिनट या 20 मिनट के बाद में यहाँ से सैंपल निकलना है आपको, यहाँ से सैंपल निकलना है, सैंपल निकल के उसको ड्राई करना है, और उसके बाद में उसका वेट मेजर करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका यहाँ डाइल्यूट 1 to 2% डाइल्यूट सस्पेंशन है, यहाँ से पोर करेंगे आप, ठीक है, उसको रेस्ट करने देंगे। बाद में हर एक टाइम इंटरवल में, मतलब 10 मिनट का इंटरवल ले लो या फिर 15 मिनट का ले लो, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंट। तो उसके इंटरवल के बेसिस पे यहाँ से सैंपल उसका विड्रॉ करना है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सैंपल विड्रॉ करना है, तो वो सैंपल ड्राई करके उसका वेट करना है। ओके, एंड दैट्स हाउ यू कैन गेट द, अगर पूरा वेट आ गया, उसका वेट आ गया, आपको डेंसिटी मालूम है, वेट मालूम है, तो उसका पार्टिकल साइज आप डिटरमाइन कर सकते हो। हाउ एंडरसन पिपेट मेथड वर्क्स। नेक्स्ट इज नथिंग बट द conductivity method, conductivity method. Next one is nothing but the conductivity method. It is also known as a method is also known as a stream scanning method or stream counting method. This conductivity method is also known as a stream scanning method or stream counting method. उसके बहुत ज़्यादा important होते हैं। Stream scanning method or stream method. Particle volume is measured in this method, and then this particle volume is converted into पार्टिकल डायमीटर, ठीक है। ये पार्टिकल वॉल्यूम मेजर करते हैं इसमें,
और उसके बाद में पार्टिकल डायमीटर में कन्वर्ट करके साइज इज एक्सप्रेस्ड एज अ वॉल्यूम डायमीटर। तो इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रीम स्कैनिंग स्ट्रीम काउंटिंग मेथड। पार्टिकल वॉल्यूम इज मेजर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू पार्टिकल डायमीटर। नो साइज जो है पार्टिकल इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ वॉल्यूम डायमीटर एंड मेथड इज यूजफुल इन द स्टडी ऑफ पार्टिकल ग्रोथ इन द सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन। मेथड किस में यूजफुल है? दिस मेथड इज यूजफुल इन द studying of particle growth in the suspension, solution, dissolution of drug and its effect of drug on microbial agent, growth of microbes. ये सब applications हैं. So what are the applications of this conductivity method? यहाँ पे इसको याद रखो, यहाँ पे वॉल्यूम डायमीटर मेजर करते हैं and that volume diameter is converted to particle diameter. Now it is useful in the study of particle growth in the suspension, solution. It is also useful in the dissolution of drug. Then again it is also useful in the study of effect of antimicrobial agent, growth of microbes. Conductivity मतलब यहाँ पे कंडक्ट करते हैं, क्या कंडक्ट करता है? यहाँ पे करंट कंडक्ट होता है। कंडक्टिविटी मतलब करंट कंडक्ट होता है। सो उसके लिए एक कंडक्टिंग मीडियम लगेगा आपको। सो सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड एज अ कंडक्टिंग मीडियम। सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड एज अ कंडक्टिंग मीडियम in which particles are suspended. In this method 4,000 particles are counted per second. 4,000 particles per second are counted by using conductivity method. Only disadvantage of this conductivity method is unsuitable for polar and highly water soluble material due to solution effect. So if you want to read in the details construction क्या है, इसका working कैसा होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन किसके ऊपर आएगा? Conducting medium used in the conductivity method for measurement of particle size. ऑप्शन में देंगे पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड वगैरह। सोडियम क्लोराइड आंसर होगा। कंडक्टिविटी मेथड में कौन सा डायमीटर यूज मेजर करते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। कंडक्टिविटी मेथड में कौन सा इक्वेशन आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो रिमेंबर ओवर हियर कंडक्टिविटी मेथड मेजर्स द पार्टिकल वॉल्यूम डायमीटर, ओके, एंड नाउ दैट वॉल्यूम डायमीटर इज कन्वर्टेड टू पार्टिकल डायमीटर एंड यूजफुल इन दिस मेजरमेंट ऑफ पार्टिकल ग्रोथ इन द सस्पेंशन। जैसे सस्पेंशन है, सस्पेंशन में पार्टिकल ग्रोथ नहीं होना चाहिए। ईच पार्टिकल शुड बिहेव इंडिविजुअल एंटिटी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जैसे एट्रैक्टिव फोर्सेस वहाँ पे डोमिनेट हो जाते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वहाँ पे डोमिनेट हो जाएंगे सस्पेंशन में, तो वहाँ पे क्या होगा? पार्टिकल ग्रोथ होगा। सॉल्यूशन में भी वैसा होता है। इट इज यूज्ड टू स्टडी द पार्टिकल ग्रोथ इन द सस्पेंशन। इमल्शन यूज्ड टू स्टडी द डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। Conducting medium used is sodium chloride solution. In this method 4,000 particles per second can be counted, and disadvantage of this method is nothing but the suitable for polar and highly water soluble material due to solvation effect. Determination of powder surface area calculated using particle size data by above method. ये ठीक है, ये पार्टिकल साइज मेजरमेंट के लिए भी है और पाउडर सरफेस एरिया मेजरमेंट के लिए भी। तो यहाँ पे याद रखो, अभी तक जितने भी आपने मेथड देखे, जैसे आपने देखा है पहला मेथड, ठीक है, माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, उसके बाद में सेडिमेंटेशन मेथड देखा, ठीक है, ओके, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, सेडिमेंटेशन मेथड, ओके। तो दोज मेथड आर नथिंग बट द मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज, ठीक है। लेकिन कंडक्टिविटी मेथड जो है उसमें पार्टिकल साइज भी मेजर कर सकते हैं और पार्टिकल का सरफेस एरिया भी मेजर कर सकते हैं। सो रिमेंबर यार, क्वेश्चन आ सकता है, वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू measure the particle size as well as particle surface area. So conductivity method is used for both size as well as particle surface area also. Determination of powder surface area calculated using the particle size data by above method. Specific surface area is the surface area per unit weight of unit volume of the material. So specific surface area is denoted by S. Okay, specific surface area is denoted by AS. Area is denoted by A and जैसे A होता है ऐसा A और उसके नीचे S लगा है, specific surface area. So what is specific surface area? Surface area per unit weight of the or unit volume of the material. तो specific surface area का definition क्या है? Surface area per unit weight और per unit volume of the material. यहाँ पे वॉल्यूम डायमीटर मेजर करते हैं। Another method is there known as adsorption method. Another method for measuring the particle size is known as adsorption method.
adsorption method, that means adsorption of liquid or gas on the surface of particle. Okay, on the basis of that the size of particle can be measured. ठीक है, यहाँ पे adsorption method में क्या होता है कि यहाँ पे गैस adsorb किया जाता है पार्टिकल में, या फिर कोई लिक्विड एडसॉर्ब किया जाता है पार्टिकल के ऊपर टू फॉर्म ए मोनोलेयर. ठीक है, एक मोनोलेयर बनाएंगे. एंड यू नो दैट जो एडसॉर्बेंट है, जो भी लिक्विड यूज़ कर रहे हो या फिर आप जो गैस यूज़ कर रहे हो, उसका साइज आपको मालूम होना चाहिए. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एब्सॉर्प्शन. सो पार्टिकल साइज डिटरमिनेशन बाय एडसॉर्प्शन मेथड. सो इन दिस वी यूज नाइट्रोजन गैस, लिक्विड नाइट्रोजन. ओके, एंड one nitrogen atom is equal to 16 angstrom unit. One nitrogen atom is equal to 16 angstrom unit. मान लीजिए कि कितना अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एडसॉर्ब हुआ है उस पार्टिकल के ऊपर, तो उसके बेसिस पे आप वहाँ पे उसका पार्टिकल का साइज डिटरमाइन कर सकते हो. यहाँ पे याद रखो, इन द एडसॉर्प्शन मेथड लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड एंड वन नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 16 एंगस्ट्रॉम यूनिट. वो उसका साइज होता है. ठीक है, तो इसके ऊपर भी नाइपर में कम से कम 5 या 6 बार क्वेश्चन आ चुका है नाइपर में. ये तो फेवरेट होता है, बाकी एग्जाम में भी आता है. सो नाइट्रोजन इज लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द एडसॉर्प्शन मेथड. ठीक है, नेक्स्ट मेथड इज एयर परमेबिलिटी मेथड. ठीक है, बहुत सारे मेथड है पार्टिकल साइज डिटरमिनेशन. मेथड इज एयर परमेबिलिटी मेथड. परमेबिलिटी मेथड. सो सरफेस डायमीटर इज एस्टिमेटेड यूजिंग एयर परमेबिलिटी मेथड. It is simple and quick determination. It is very simple and quick determination of particle size is there, used for controlling the batch to batch variation in the bifenium hydroxynaphthoate. The anthelmintic drug and grisopulvin is an anticonductor. So batch to batch variation जो होता है पार्टिकल साइज में, उसको कंट्रोल करने के लिए एयर परमेबिलिटी मेथड यूज करते हैं, मेजर द पार्टिकल साइज. ठीक है, इस अगेन ये क्या रखो उसके बारे में डिटेल में बाद में बोलता हूँ. तो यहाँ पे याद रखो कंडक्टिविटी मेथड, कोजनी-कैरामन इक्वेशन इज रिलेटेड विद द एस्टिमेशन ऑफ सरफेस एरिया बाय दिस मेथड. कौन सा मेथड? एयर परमेबिलिटी मेथड. कोजनी-कैरामन इक्वेशन, कोजनी-कैरामन इक्वेशन इज रिलेटेड विद द एयर परमेबिलिटी मेथड. मेजरमेंट ऑफ पार्टिकल साइज बाय एयर परमेबिलिटी मेथड. तो व्हाट इज द बेसिस? कोजनी-कैरामन इक्वेशन. ठीक है, और इसमें एक ये भी होता है Fisher-Subscriber. It is an apparatus which is official in case of measurement of particle size determination by air permeability method. एक ऑफिशियल होता है Fisher-Subscriber. इसको भी याद रखो, क्वेश्चन आ सकता है. क्वेश्चन कोजनी-कैरामन इक्वेशन इज रिलेटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ पार्टिकल साइज डिटरमिनेशन. ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है. सो एयर परमेबिलिटी मेथड इज द मेथड बेस्ड अपॉन द कोजनी-कैरामन इक्वेशन. कोजनी-कैरामन इक्वेशन क्या होता है? यहाँ पे ये वॉल्यूम डायमीटर इज इक्वल टू एरिया इंटू viscosity into specific surface area. Delta PT divided by KL into epsilon 1 minus epsilon whole square. ऐसा इक्वेशन होता है. इक्वेशन का डिटेल वगैरह जाने की जरूरत नहीं. नाउ दिस इज अ सीविंग मेथड. जो आपने सीविंग मेथड देखा था, सीविंग मेथड, तो ऐसे अरेंज करते हैं सीव्स. सीव्स अरेंज करते हैं ऐसे वर्टिकली. अब उसके बाद में पाउडर डालते हैं वहाँ पे और चालू करते हैं. हर एक सीव के ऊपर पाउडर कुछ रेटिन होता है. जो पाउडर 120 को आ गया उसको बोलेंगे सीव 120 सीव पाउडर, और उसको बोलेंगे 125 माइक्रोन पाउडर. ठीक है, जो पाउडर सीव नंबर 10 के पास हुआ लेकिन सीव 20 पे अटक गया तो उसको बोलेंगे वो 840 माइक्रोन पाउडर. वहाँ पे दिया है ये सीव नंबर, उसका मेस अपर्चर. वी ऑलरेडी सीन दिस इन द साइज सेपरेशन चैप्टर. 10 मेस सीव है तो उसका मेस अपर्चर क्या है? 2 मिलीमीटर. 20 मेश शिव है तो उसका क्या है? 840 माइक्रोमीटर. अगर 60 और 80 मेश शिव है तो उसका क्या है? 180 माइक्रोमीटर. अगर ठीक है, 120 सिव जो है 120 सिव उसका पार्टिकल साइज, उसमें पार्टिकल साइज कितना आएगा? 125 माइक्रोमीटर. सो दिस इज अ सीविंग मेथड. यहाँ पे शॉर्ट में ही बोला. तो परमेबिलिटी मेथड जो होता है एपरेटस कुछ ऐसे होता है. एक ये यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन, एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड. ठीक है, कंडक्टिविटी मेथड का ही कंडक्टिविटी मेथड का मेथड मेजरमेंट ऑफ पार्टिकल साइज बाय कंडक्टिविटी मेथड काउंटर एपरेटस. तो जो भी पार्टिकल, जिसका भी पार्टिकल मेजर करना है उसका सस्पेंशन आपको यहाँ पे डालना है.
ये रहेगा सस्पेंशन। यहाँ से डाल सकते हो सैंपल। इसमें क्या रहेगा, एक छोटा सा छेद रहेगा, इसको बोलेंगे ओरिफिस। छोटा सा ओरिफिस रहेगा, ओपनिंग रहेगा, और वो जो सैंपल है इसमें डाला है आपने, तो उसमें एक इलेक्ट्रोड भी रहता है। ठीक है, तो नाउ जैसे ही यहाँ पे एक सैंपल का यहाँ पे पार्टिकल ये ओपनिंग में आएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सैंपल है, लेकिन अभी ओपनिंग में जो ओरिफिस है उसमें कोई पार्टिकल नहीं है, तो क्या होगा, जो करंट है, करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कैथोड एंड एनोड विल बी रिकॉर्डेड। ठीक है, करंट नॉर्मल रहेगा। जैसे ही यहाँ पे ये जो ओरिफिस है उसमें अगर कोई पार्टिकल आके बैठ गया या फिर वो निकल के आया बाहर सॉल्यूशन में, चेंज इन द रेजिस्टेंस होगा, चेंज इन द रेजिस्टेंस। वट एवर द कंडक्टिविटी ऑफ नॉर्मल सॉल्यूशन दैट विल बी अफेक्टेड बाय when the particle will comes from this orifice. Conductivity affected will be that when particle will come through this orifice, that will offer some resistance. So that will offer some resistance and conductivity जो है वो change हो जाएगा, conductivity change होगा. That is nothing but the pulse flow. That is recorded as a pulse current, and that pulse current is directly proportional to the particle size as well as particle surface area, and that pulse current is recorded over here, and that will be amplified and then recorded. So that is the basis for conductivity method. Same thing is given in the detail in any book. Next point is this was the fundamental properties of powder. Now derived properties of